Hello everyone. In the sequence of haloalkane and haloarine, today we are going to study the chemical reactions of haloarine. This is the last topic of our chapter. So the chemical reactions of haloarine will be studied in again 3 parts. The first one, reaction with metals. The second is electrophilic substitution reactions. आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN कहते हैं, तो इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम SE से डिनोट कर सकते हैं. सो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन. The 3 types we will study: reaction with metals, then the electrophilic substitution reactions and nucleophilic substitution reactions. So let us start with reaction with metals. Same as haloalkanes, haloarenes also react with various metals. So we will study using different metals. So first of all with sodium metal. हैलोअरीन में आपने सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन पढ़ी थी उसे हमने कहा था वुड्स रिएक्शन. इसी तरह से हैलोअरीन्स भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और इन्हें हम डिफरेंटली नेम करेंगे. सो द रिएक्शंस आर नेम्ड एज फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिटिक रिएक्शन एंड व्हाट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन. In the first case, when we use the Fittig reaction, two moles of haloarine reacts with sodium metal. In presence of THF. In haloalkanes we have used dry ether as a moisture absorbent, whereas in haloarenes we use EHF, tetrahydroxyfuran. So when 2 moles of haloarine reacts with 2 moles of sodium metal, we get two moles of NaX, and both the benzene rings make a bond with each other and it is named as biphenyl. Take an example. I have taken a benzene ring reacting with 2 moles of sodium. Again I have taken a benzene ring with halogen in presence of THF, and as a product we get 2 benzene rings bonded with each other. It is named as biphenyl. So this reaction in which both halides are aromatic in nature is named as Fittig reaction. Fittig reaction में दोनों ही reactants arenes होंगी. When 2 haloarenes react with each other in presence of sodium, or we can say when 2 moles of haloarenes react with sodium metal, they form biphenyl and reaction is named as Fittig reaction. Now what is Wurtz Fittig reaction? जब हमने 2 हैलोएल्केन्स को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन को नाम दिया था वुड्स रिएक्शन. जब 2 हैलोएरीन्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है हमने नाम दिया फिटिग रिएक्शन. अब हमारे पास नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन, यानी दोनों का एक कॉम्बिनेशन.
तो नाम से हम समझ सकते हैं इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों ही यूज होंगे। दैट मीन्स व्हेन 1 मोल ऑफ हेलो एल्केन एंड 1 मोल ऑफ हेलो एरीन reacts with sodium metal in presence of dry ether or THF, we get a mixture of alkyl and aryl compound along with NaX, and the reaction is named as Wurtz-Fittig reaction. Let us take an example. I am taking chloromethane as a haloalkane, then sodium metal and chlorobenzene as haloarine. After the reaction we get benzene ring bonded with CH3 group along with 2 moles of sodium chloride. This product is named as toluene. We can take any alkyl group over here, but if only CH3 is there, the product is toluene. If we take ethyl, propyl or any other alkyl group, the different products will be formed. So this is the reaction with sodium metal. Now let's take the example for the magnesium. Reaction with magnesium metal. When we have reacted the haloalkanes with magnesium, we get the Grignard reagent. Similarly over here, when haloarenes react with magnesium, they also form aromatic Grignard reagent, and reaction takes place as well. The haloarene reacts with magnesium in presence of dry ether, and we get C6H5 MgCl as a Grignard reagent. So the reaction is same as the haloalkanes. Here again we are getting the Grignard reagent, which is used to prepare a number of organic compounds. So we can say that same as the haloalkanes, haloarenes also react with the metals. Now after the reaction with metals, we will study the electrophilic substitution reactions. What are electrophilic substitution reactions? When a more reactive electrophile substitutes the less reactive, reaction is named as electrophilic substitution reaction. अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे हेलोएरीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमारे कंपाउंड का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हम उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। और कई बार बच्चे गलती से इन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड विच पार्ट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन आवर हेलोएरीन। I am forming a structure of haloarine. It is a benzene ring. Every carbon is bonded with hydrogen except one. One is having the halogen. So this is the structure of haloarine. अगर इस स्ट्रक्चर को आप केयरफुली देखो तो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन और हैलोजन। अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करें तो हमारा हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण
नेगेटिव चार्ज गेन करता है और बेंजीन को मिलता है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि रिएक्शन बनेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी, जो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर हम फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कंसीडर करें तो कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। सो इन केस ऑफ रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो बेंजीन रिंग बनती है नेगेटिव और हाइड्रोजन बनता है पॉजिटिव। As we know that the every carbon of benzene ring is sp2 hybridized, which is comparatively more electronegative than sp3 hybrid carbon. So it is very easy to attain negative charge for a benzene ring, and it is easier to release hydrogen as a cation or as a proton. So the chemical reactions in which hydrogen is replaced by some other compound or positive ion, the reaction is named as electrophilic substitution reactions. In our last video we have studied that electrophiles are the substances which itself are positively charged and attracts the negative charge. So hydrogen here is positively charged and it attracts the negative charge or being attracted towards the negative charge. तो ये हाइड्रोजन जब किसी नेगेटिव के साथ रिलीज हो जाता है, इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिएक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम एग्जांपल्स करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इन सभी की स्टडी करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर हैलोएरीन्स। The first reaction which we are going to study is halogenation. What is the meaning of halogenation? The reaction in which halogen is being added in the compound, the reaction is named as halogenation. So we are going to add the halogen in any haloarine. I am taking a haloarine. This is a haloarine in which we are going to add the halogen or a chlorine as halogen in presence of anhydrous AlCl3. Anhydrous means completely dry. We can take AlCl3 or FeCl3 or any metallic halide for the reaction. When we use anhydrous AlCl3, we get two products. One is major and other is minor. एज अ बाई प्रोडक्ट। जब किसी भी हैलोएरीन की रिएक्शन हैलोजन से करवाई जाती है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमें दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है। इसमें से पैरा डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो डेरिवेटिव माइनर होता है। ये माइनर और मेजर प्रोडक्ट्स इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है, और माइनर वाला कम अमाउंट में बनता है। इस तरह से हमें एक मिक्सचर मिलता है ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स का, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl रिलीज होता है। नाउ अगेन अ क्वेश्चन अराइज टू आवर माइंड दैट व्हाई ओनली ऑर्थो एंड पैरा, नॉट द मेटा डेरिवेटिव ओवर हियर। सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही क्लोरीन क्यों ऐड हुआ, मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं, इस जगह पर क्यों क्लोरीन ऐड नहीं हुआ? इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं रेजोनेंस की तरफ। जब आपने क्लास 11th में रेजोनेंस पढ़ा था, आपने हेलो एल्केन
की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, जहां हम पढ़ते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एंड द नेगेटिव चार्ज अराइजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ हैलोजन। हमने देखा था कि कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, डिलोकेलाइज होते हैं और बेंजीन रिंग पर चार्ज प्रोड्यूस होता है जो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। इसीलिए हमारा कोई भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। क्योंकि इन दोनों पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है तो मेटा पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिवली चार्ज है, वो इस पोजीशन से रिपेल करेगा और यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यही रीजन है कि हमारे सारे इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव फॉर्म करेंगे, मेटा डेरिवेटिव्स नहीं बनेंगे। तो ये बात होती है हैलोजिनेशन की। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन। Nitration is reaction with nitric acid. When haloarine reacts with concentrated HNO3, the reaction takes place in presence of concentrated H2SO4, sulfuric acid, and commonly we say the mixture of nitric acid and sulfuric acid as nitrating mixture. तो हमारा नाइट्रेशन होगा इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में। Haloarine react with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4. Here, as the reaction is electrophilic substitution reaction, the electrophile of this substitute the hydrogen. The bond is broken down like this. OH negative and NO2 positive. This is nucleophile, whereas this is electrophile. The substitution is electrophilic substitution. So hydrogen is replaced by electrophile. हमारा OH न्यूक्लियोफाइल है और NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है और सब्स्टिट्यूशन होना है इलेक्ट्रोफाइल का, पॉजिटिव चार्ज का। तो NO2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह बॉन्ड बनाएगा। अगेन वी गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, द माइनर एंड मेजर। ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, ये हमारा बचा हुआ OH यहां से निकलने वाले H के साथ मिलकर वाटर फॉर्म करेगा। सो वी गेट मेजर एंड माइनर, टू प्रोडक्ट्स। सेम द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, मेटा डेरिवेटिव नहीं बनेगा। सो दिस इज द नाइट्रेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन के नाइट्रेशन से हमें नाइट्रो कंपाउंड्स या नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलते हैं। वी कैन से इट इज 4 हेलो नाइट्रो बेंजीन एंड दिस इज 2 हेलो नाइट्रो बेंजीन। हेलो की जगह हैलोजन का नाम होगा, अगर X की जगह हम कोई पर्टिकुलर हैलोजन यूज करेंगे। सो आफ्टर द नाइट्रेशन वी विल स्टार्ट द सल्फोनेशन। Sulfonation is the reaction with concentrated sulfuric acid
when we divide the sulfuric acid in electrophile and nucleophile, we get OH as nucleophile and HSO3 as electrophile. दिमाग में बात आती है कि ये तो दोनों एसिड है, नाइट्रिक भी एसिड है और सल्फ्यूरिक भी एसिड है, तो केवल H+ निकलना चाहिए। आपका H+ जब सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को ही, तो आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन नहीं होगी। जब भी रिएक्शन होगी तो OH एज अ नेगेटिव रिलीज होगा वाटर बनाने के लिए, तभी आपका नया प्रोडक्ट बनेगा। तो बेंजीन रिंग हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट नहीं करती है, बल्कि दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगी। तो आप देखेंगे बेंजीन रिंग विद हैलोजन रिएक्ट्स विद concentrated H2SO4 and we get again two products, a mixture of two products, that is ortho and para derivative along with a byproduct। अब कौन सा ग्रुप यहाँ ऐड होगा, फिर से देखें हम OH माइनस हमारे H+ को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, लेकिन उसको अट्रैक्ट जरूर करेगा। तो यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर बनाएगा वाटर। पीछे बचा HSO3 जो हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो सकता है, एंड वी गेट HSO3। सिमिलरली ओवर हियर SO3H। मैंने यहाँ HSO3 लिखा है, यहाँ SO3H, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, मैंने बॉन्ड बनाया है S के साथ, कार्बन का बॉन्ड सल्फर से बनेगा। यहाँ अगर हम H पहले लिखते हैं तो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन 2 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। सो आई हैव रिटन S फर्स्ट एंड देन O3H। कैसे पता चला कि बॉन्ड सल्फर से ही बनेगा? लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। This is the structure of sulfuric acid. Whenever the bond is broken down, forming negative OH and positive SO3H. बॉन्ड S से ब्रेक हुआ है, तो इसी जगह पर बेंजीन का कार्बन अपना बॉन्ड बनाएगा, और हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्म होगा S के साथ, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज पैरा हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, and this is ortho halo benzene sulfonic acid। अगर हम IUPAC नेम्स लिखते हैं तो ऑर्थो और पैरा की जगह इनकी पोजीशंस कहेंगे। दिस इज 4 halo benzene sulfonic acid and this is 2 halo benzene sulfonic acid। हैलोजन का नाम हैलोजन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप क्लोरीन लगाओगे तो क्लोरो और ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमो बनेगा। तो ये रिएक्शन हुई हमारी सल्फोनेशन। We have done the halogenation, nitration and sulfonation, and at last of the electrophilic substitution reaction we proceed towards the Friedel-Crafts reaction। The Friedel-Crafts reaction we will study in 3 parts, that are alkylation, acetylation and acylation। Alkylation is addition of alkyl group. The acetylation is addition of acetyl group, and acylation is addition of acyl group। So for the Friedel-Crafts reaction, the main condition is we must use anhydrous AlCl3 or FeCl3।
अगर आपने एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 यूज नहीं किया है तो रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं कहेंगे। इन 3 पार्ट से हम इसे स्टडी करेंगे। अगर हमारे कंपाउंड या रिएक्टेंट में एल्काइल ग्रुप ऐड होता है तो रिएक्शन एल्काइलेशन, एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है तो एसिटाइलेशन और एसाइल ग्रुप ऐड होता है तो एसाइलेशन कहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फ्रीडल-क्राफ्ट विद एल्काइलेशन। Addition of alkyl group. Haloarine reacted with alkyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. जब आप एल्काइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हो तो बॉन्ड ब्रेक होगा एनायन और कैटायन में। क्लोरीन फॉर्म्स एनायन एंड आर कार्बन चेन फॉर्म्स कैटायन। निकलने वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, इट गोज विद नेगेटिव और क्लोरीन एंड फॉर्म्स HCl। हमारा हेलोएरिन एज इट इज रहेगा। ड्यू टू द रेजोनेंस डेरिवेटिव बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा। अब क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिलीज होगा ये बनाएगा HCl। बचा हुआ ग्रुप R बॉन्ड बनाएगा जहां से हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ R ग्रुप ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा ऑर्थो पैरा एल्काइल डेरिवेटिव। और इस तरह से एल्काइलेशन में एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, आप जो भी एल्काइल ग्रुप लोगे CH3, C2H5 एंड Al1 वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, इसके लिए हम एसिटाइल क्लोराइड यूज करते हैं या एसिटाइल हैलाइड यूज करेंगे। रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने एल्काइलेशन करवाई है, केवल एल्काइल क्लोराइड की जगह एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और प्रोडक्ट भी वैसे ही बनेगा जैसे हमने ऊपर बनाया है ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव। फिर से यहां बॉन्ड कहां ब्रेक होगा? क्लोरीन और कार्बन के बीच। क्लोरीन और कार्बन के बीच जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा निकलने वाला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड इट फॉर्म्स HCl। बचा हुआ एसिटाइल ग्रुप CH3CO ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ है कार्बन से, नया बॉन्ड कार्बन से ही बनेगा और उस कार्बन की एक तरफ डबल बॉन्ड हो और दूसरी तरफ CH3 होगा। सो we'll write C, one side CH3 and another side double bond O. Similarly, we can write over here C with CH3 and double bond O. इस तरह से हमारी रिएक्शन हो जाती है एसिटाइलेशन। Now the third is acylation. अगर आपने ध्यान दिया हो तो एसिटाइल और एसाइल ग्रुप में एक छोटा सा डिफरेंस है। जहां एसिटाइल में CH3 लिखा है, एसाइल में हमने R लिखा है, यानी CH3 के अलावा कोई भी कार्बन चेन अगर आप यूज करते हो कंपाउंड एसाइल कहलाता है। तो एसाइलेशन में केवल आपको इतना ही चेंज करना है कि CH3 की जगह पर R ग्रुप लगाना है, यानी कोई दूसरा कार्बन ग्रुप लगेगा। सो वी कैन राइट द रिएक्शन ऑफ एसाइलेशन। Haloarine reacts with acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 and we get पैरा पर आपको कार्बन, जहां CH3 था वहां R लगाना है और O अपनी जगह रहेगा एंड सेम
on the ortho position also, and HCl। और आप देखोगे कि इसमें एक कीटोनिक ग्रुप बन रहा है, तो हमारा एसिटाइल और एसाइल दोनों ही बेंजीन के साथ कीटोनिक ग्रुप रखता है, इसीलिए इसे फिनोन कहा जाता है। फिनाइल विद कीटोन, इट इज फिनोन। So this is the Friedel-Crafts reaction, and after the Friedel-Crafts reaction we will continue with the nucleophilic substitution reaction. Note it down. Now the nucleophilic substitution reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, और हमने पढ़ा था कि हमारे हेलो एरीन्स में हैलोजन ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके एनायन बनाता है। तो अगर हेलो एरीन्स में हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, हैलोजन हटकर कोई दूसरा ग्रुप लगता है, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और अगर बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या हेलो एल्केन्स की तरह ही हेलो एरीन्स में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इजीली हो जाते हैं? नहीं, हेलो एरीन्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बोर्ड एग्जाम में आपसे रीजंस पूछे जाते हैं, why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. So we will discuss here why they are least reactive towards nucleophilic reactions. First reason for their least reactivity is resonance. आपने क्लास 11th में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की थी। जब हमारे हेलो एरीन में जिस पर एक हैलोजन लगा है, जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक डोनेटिंग ग्रुप भी है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो आप देखते हो, ड्यू टू द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर्स, एक लोन पेयर डोनेट होता है, कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डिफिकल्टी से ब्रेक होता है। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उससे ज्यादा एनर्जी डबल बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो वी कैन से दैट बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी फॉर दिस पार्शियल डबल बॉन्ड इज मोर देन the single bond present in haloalkanes, and that is the reason the haloarenes are less reactive towards nucleophilic reactions. यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि haloalkanes जिनमें सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, और यही रीजन है कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इजीली परफॉर्म करते हैं, जबकि haloarenes न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस मुश्किल से देते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट रीजन, ड्यू टू द रेजोनेंस। सो वी कैन से दैट ड्यू टू द रेजोनेंस अ पार्शियल डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, देयरफॉर द बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी इंक्रीजेस, सो दे लीस्ट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। देन द सेकेंड पार्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। In haloalkanes, the carbon is sp3 hybrid, whereas in haloarenes, the carbon is sp2 hybrid. sp2 और sp3 हाइब्रिड कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की हम बात करें, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3. As we have studied in our 11th standard, as the S character of hybrid carbons increases, as the electronegativity also increases.
हमारे हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं sp3 की, तो यहाँ s और p का रेशियो रहता है 25:75। अगर हम बात करें sp2 की, तो रेशियो होता है 33.33:66.66 and in sp hybrid orbitals the ratio is 50:50। धीरे धीरे आप देखिए s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, s का रेशियो इंक्रीज हो रहा है and as the s character increases the electronegativity also increases, so we can say that sp is most electronegative, then sp2 and then sp3. This is the electronegativity order of the hybrid orbitals. So as the sp2 is more electronegative than sp3, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा। तो हैलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिड कार्बन हैलोजन और कार्बन के बीच बनने वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, इजीली रिलीज नहीं होने देता और इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। इसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगेन द बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी इंक्रीजेस, whereas in sp3 the electronegativity of carbon is less, comparatively less, so the bond can be easily broken down. The bond cleavage energy is comparatively less, and that is again the reason why haloarenes are least reactive towards nucleophilic reactions. Now the third point is instability of phenyl cation. If we break the haloarene, two probabilities are here. Halogen anion and phenyl group as a cation, and the second probability is phenyl anion and halogen as cation. या तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। And as we know that the formation of phenyl cation is not easy to be formed. Phenyl group sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली नहीं देगा और इसकी वजह से इसका कैटायन बनना डिफिकल्ट है। सिमिलरली इन द सेकेंड प्रोबेबिलिटी हैलोजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो फिनाइल को एनायन नहीं बनने देगा और इस वजह से इनके बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस डिफिकल्ट हो जाती है। दिस इज द थर्ड रीजन फॉर लीस्ट रिएक्टिविटी ऑफ SN reactions in haloarene. And at last, the comparative repulsions between the nucleophile and carbon. Haloarenes itself having nucleophile with negative charge and sp2 hybrid carbons with the more electronegativities. So we can say that the overall compound is highly electronegative in nature. So when a nucleophile tries to come near it, which is also the electronegative, in that case a repulsion takes place between them and it is difficult to approach a nucleophile towards the haloarene. And again it is a basic reason for the least reactivity of haloarenes. These are the four reasons due to which haloarenes are least reactive towards nucleophilic reactions: the resonating structure, the hybridization, the instability of carbocation or the phenyl cation, and the repulsion between nucleophile and the haloarene. So, does the nucleophilic reactions not take place in haloarenes? It is not like that. Haloarenes shows nucleophilic reactions,
but in particular conditions like high temperature, high pressures and so on. So we will study few nucleophilic substitution reactions of haloarenes with special or critical conditions. Reaction of haloarene with aqueous NaOH. As it is a nucleophilic substitution reaction, so we know that OH replaces the halogen. OH replace करेगा halogen को. जो more reactive nucleophile है, less reactive को replace करेगा. तो अब इस reaction में कौन सी condition use होती है? The reaction always takes place at 623 Kelvin temperature and at 300 atmospheric pressure. This is the special condition for the reaction. अगर इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी. रिएक्शन कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स अस ONA and HX is released out. यहाँ से H और यहाँ से X HX के फॉर्म में रिलीज होता है और ये बचा हुआ ONA हमारा कंपाउंड बनाएगा. Now the reaction not stops over here. This HX again reacts with ONA. The compound is known as sodium phenoxide. The halogen acid reacts with sodium phenoxide. And by the reaction of HX, we get OH on the benzene ring and NaX is released out, and this is called phenol. So like this, when haloarene reacts with aqueous NaOH, sodium phenoxide is formed, which is in presence of acidic medium forms phenol. But the reaction takes place at a particular temperature and pressure. So like this, all the nucleophilic substitution reactions require particular conditions like high temperature and high pressure. Now one more thing. Does the presence of electron donor group or acceptor group affect the reactivity of haloarenes? Yes. If any electron donor or acceptor group is present on the haloarene, it affects the reactivity of haloarenes. So let us study the effect of electron donor and acceptor groups on the haloarenes. Due to the resonance, the negative charge occurs at the ortho and para positions only. So, as the electron donor or acceptor groups are present on ortho and para, they affect the reactivity of haloarenes. But if the group is present on meta, it will not affect the reactivity. अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर है तो हमारी रिएक्टिविटी को इफेक्ट करेगा. लेकिन अगर वो मेटा पोजीशन पर है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेटा पर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है. तो सबसे पहली बात कि कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर ग्रुप्स लगे होंगे तो रिएक्टिविटी इफेक्टेड होगी, एंड दैट इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. नाउ हाउ दे इफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स. अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है जिस पर भी लगता है. अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगेगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई
तो उसे किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी और उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सो बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। The presence of electron donor group on ortho and para position decreases the reactivity of haloarenes because they increases the electron density on the benzene ring. But if the electron withdrawing groups are present on ortho or para, they increases the reactivity. अगर ऑर्थो और पैरा पर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा और जब हमारी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी वो फास्ट रिएक्ट करेगा रिएक्शंस में, सो द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द सेम रिएक्शन ऑफ एक्वस NaOH। One more thing, as the number of electron donor or withdrawing group increases, their reactivity effects also increases. As with the increase in number of withdrawing groups, the reactivity increases faster. And with the increase in number of electron donor groups, the reactivity decreases faster. So, the number of these groups also affect the reactivity. So let us take the example of haloarene with aqueous NaOH having different number of electron withdrawing groups on the different positions. First of all, we are performing the reaction without any group. But if an electron withdrawing group is added, like NO2, which is an electron withdrawing group, it is added on the ortho position, or we may add at the para position. The 448 Kelvin temperature is required for the reaction. You can see that the required temperature decreases. जितनी ज़्यादा हमारी रिएक्टिविटी होगी उतना ही कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। सो डिक्रीज इन टेम्परेचर टेल्स अस दैट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन इज इंक्रीजिंग। सो वी गेट द सेम प्रोडक्ट along with the electron withdrawing group on the same position, but the reaction takes place at lower temperature comparatively. Now the second one, the presence of electron withdrawing group on ortho and para position. Comparatively less temperature is required. As the number of electron withdrawing group increases, the reactivity of haloarene also increases, so less temperature is required, and we get the product with two nitro groups on ortho and para positions. Now we take one more electron withdrawing group. In that case, only a little bit warm or heating can give us the result. And at last,
If we take the NO2 group on the meta position, what happens? The reaction requires the same temperature as the first one. That means there is no effect on the reactivity due to the presence of electron donating or withdrawing group on the meta position. Meta पर अगर ये ग्रुप लगा है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन उसके लिए उतना ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो आपने देखा कि अगर हमारा एक NO2 ग्रुप लगा है तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो गया, यानी रिएक्टिविटी बढ़ गई। 2 NO2 ग्रुप इंक्रीजेस मोर द रिएक्टिविटी, the 3 increases more, and the presence on meta position does not affect the reactivity of haloarenes. तो आज हमने देखा कि haloarenes की केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाउ दे रिएक्ट विद मेटल्स, how they undergo the electrophilic substitution and nucleophilic substitution reactions. इसके साथ ही हमारी haloalkanes और haloarenes से रिलेटेड सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। होप आपको रिएक्शन समझ में आ रही होगी। इन रिएक्शंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ सेफ एंड नाइस डे।